Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel TrustLogix Tutorial. TrustLogix is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our TrustLogix website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI 2021. चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या आई है? सो हियर आर द ऑप्शंस 36, 51, 49, 60, 45. So here the correct answer is India has been placed at 49th position among 104 nations in the Chandler Good Government Index CGGI 2021. Okay. So भारत को कितना पोजीशन मिला? टोटल 104 देशों में से भारत को 49th पोजीशन मिला CGGI 2021 में. So now goes the next question. Question 2. DRDO recently conducted a successful maiden test firing of the 5th generation Python 5 missile. The state of the art missile is which type of missile? Okay. So यहाँ आपको पूछ रहा है कि हाल में ही DRDO ने बहुत ही सक्सेसफुल मैडन टेस्ट फायरिंग की है 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल की. सो ये मिसाइल किस स्टेट ऑफ आर्ट की थी? सो हेयर आर द ऑप्शंस: एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स. So here the correct answer is air-to-air missile. The Defense Research and Development Organization DRDO successfully test-fired the 5th generation Python 5 air-to-air missile from Tejas aircraft at Goa. Okay, DRDO ने successfully Tejas aircraft Goa से Python 5 air-to-air missile को test किया. Okay. So now goes the next question, and here the next question is what is the latest GDP growth rate estimate of India in fiscal year 2021-22 as per the ADB. Okay, so यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि latest GDP growth rate इंडिया का fiscal year 2021-22 में as per ADB कितना बताया गया है? So here are the options: 9%, 11%, 13%, 10% and 12%. Okay, so here the correct answer is 11%. The Manila-based Asian Development Bank ADB has projected the growth rate of India's economy in its latest flagships Asian Development Outlook 2021 as follows. FY22 is 11%. Okay, ADB के अकॉर्डिंग भारत की इंडियन इकोनॉमिक रेट कितनी बताई गई, GDP रेट कितनी बताई गई, कितनी ग्रोथ बताई गई है ADO 2021 में? सो इसके आंसर है 11%. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रोबोट प्रोटोटाइप नेम्ड एज NEO-01 टू क्लियर स्पेस डेब्रिस. स्पेस डेब्रिस को क्लियर करने के लिए एक रोबोट प्रोटोटाइप बनाया गया NEO-01. तो ये किस देश ने लॉन्च किया है? सो हियर आर द ऑप्शंस: रशिया, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड चाइना. सो हियर द करेक्ट आंसर इज China. The Chinese government has launched a robot prototype named as NEO-01 in the Earth's low orbit on April 27, 2021 on its Long March 6 rocket. Okay, चाइना की सरकार ने हाल में ही लॉन्च किया रोबोट प्रोटोटाइप जिसका नाम है NEO-01, जो कि अर्थ के सबसे लोएस्ट ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट में ये लॉन्च किया गया है 27 अप्रैल 2021 को, जो कि लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से किया गया है. So now goes the next question. When is the International Dance Day observed globally? इंटरनेशनल डांस डे पूरी दुनिया में किस डेट पर मनाया जाता है? सो हियर आर द ऑप्शन: 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल एंड 26 अप्रैल. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 29 अप्रैल. ओके, द इंटरनेशनल Dance Day is observed globally on 29 April to celebrate the value and importance of dance and encourage participation and education in this art form through events and festival. Okay, हर साल पूरी दुनिया में 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे.
जिसमें कि डांस की वैल्यू और इम्पॉर्टेंस बताई जाती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है. So now goes the next question, and here the next question is, Manoj Das, who has passed away recently, was a renowned author of English and मनोज दास जिनकी हाल में ही डेथ हो गई है, तो वो रिनाउंड ऑथर किस चीज़ के थे, इंग्लिश और किस लैंग्वेज के थे. सो हियर आर द ऑप्शंस, उड़िया, बंगाली, हिंदी, मराठी एंड गुजराती. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज उड़िया. एमिनेंट इंडियन एजुकेशनिस्ट, popular columnist and prolific author who wrote in Odia and English has passed away. So कौन है भारत के ये ऑथर, कौन है? ये हैं भारत के नहीं है, ये ऑथर है मनोज दास जो इंग्लिश और उड़िया में लिखते थे. ओके, भारत के ये इंडियन एजुकेशनिस्ट, पॉपुलर कॉलमनिस्ट भी हैं और एक प्रोलिफिक ऑथर हैं जो उड़िया और इंग्लिश में लिखते थे और हाल में इनकी डेथ हो गई. So now goes the next question. IHS Markit has projected the GDP growth rate of India in FY22 at what percent? IHS Markit ने GDP growth rate इंडिया की फिजिकल ईयर 2022 में कितनी परसेंट बताई है? So here are the options: 10.5%, 12.4%, 11%, 9.6%, 8.3%. So here the correct answer is 9.6%. London-based financial service company IHS Markit has projected the GDP growth rate of Indian economy to grow at 9.6% in fiscal 22. Okay, so लंदन की ये जो कंपनी है IHS Markit, इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी बताई? 9.6 बताई फिजिकल ईयर 2022 में. So now goes the next question. Who has been appointed as the brand ambassador of ASICS? ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे सेलेक्ट किया गया, अपॉइंट किया गया? सो हियर आर द ऑप्शंस: रविचंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे एंड रविंद्र जडेजा. सो हियर द करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा. Japanese sportswear brand ASICS on 27th April announced that it has appointed Ravindra Jadeja, the all-rounder of the Indian cricket team and Chennai Super Kings, as its brand ambassador. हाल में ही जापानीज़ के स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड ASICS ने 27 अप्रैल को अनाउंस किया कि वो रविंद्र जडेजा को, जो कि ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के भी ऑलराउंडर हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ASICS के. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन आर्मी रिसेंटली साइंड एन MOU विथ डैश एंड डैश फॉर लद्दाख इग्निटेड माइंड्स प्रोजेक्ट. लद्दाख इग्निटेड माइंड्स प्रोजेक्ट के लिए भारतीय आर्मी ने हाल में ही एक MOU साइन किया, किस के साथ? सो हियर आर द ऑप्शंस: HPCL एंड NIEDO, HPCL एंड NCERT, BHEL एंड NIEDO, BHEL एंड NCERT, HPCL एंड BHEL. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज HPCL and NIEDO. Okay, as a part of India's army initiative to secure a better future for Ladakhi youth, the Indian Army under the aegis of Fire and Fury Corps signed MOU with cooperating partner Hindustan Petroleum Corporation Limited, HPCL, and executing agency National Integrity and Educational Development Organization at HQ 14 Corps Leh. ओके, भारतीय आर्मी की तरफ से लद्दाखी इंडियन आर्मी ने क्या किया है? HPCL और NIEDO के साथ ये साइन किया है लद्दाख इग्निटेड माइंड्स प्रोजेक्ट के लिए. ओके, सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन: हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021? इनमें से किसी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है? सो हियर आर द ऑप्शंस: रथिका रामासामी, आरजू खुराना, कृति के करंत, अर्पिता S मूर्ति, कृष्णा कुमारी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज कृति के करांत. ओके, डॉक्टर कृति के करांत, चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट्स CWS, has been chosen as the first
chosen as the first Indian and Asian woman for 2021 Wild Innovator Award. डॉक्टर कृति के खरांत को सेलेक्ट किया गया एज अ वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.